کل ایک بڑا افسوس جس پہ مجھے ہوتا ہے اور بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ایک مندر کو جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ مچائی گئی اور خراب کیا گیا، اور جسٹ ہولی سے ایک رات پہلے اس طرح کی کارروائی کی گئی، اور ایک کوئی لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے اس مندر میں جا کر اور وہاں کے چیزوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے اوپر ایف آئی آر تو ہو چکی ہے، ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے، رجسٹرڈ ہو گئی ہے ایف آئی آر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اس پہ کتر تک کہاں تک جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے، کہاں تک ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور کوئی کسی کو اریسٹ کیا جائے گا یا سزا دی جائے گی۔ اس چیز کو چیک کرنا بہت ضروری ہے اور ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نہیں، ان لوگوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا، تو وہ بہت غلط ہوگا، بہت غلط میسج جائے گا ساری دنیا میں۔ تو بالکل یہ کو ہولی کی مبارکباد۔ تو میں یہاں بتاتی چلوں کہ خان صاحب، ہولی کا تہوار صرف پاکستان کے ہندو کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو آپ کو پوری دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ان یا کسی بھی ریلیجن کے، ان سب کو ہولی کی مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ ویسے بھی ایک بڑا خوبصورت اور کلرفل ایونٹ ہے، اور لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے دیوالی پہ غلطی کی تھی عمران خان صاحب نے اور صرف پاکستان کے ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی مبارکباد دی تھی اور باقی لوگوں کو دنیا میں بھول گئے تھے، وہی غلطی انہوں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کی ہے۔ لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو خان صاحب کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ پھر وہ اپنا سر پکڑ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ سدھرنے کا ٹائم نہیں لے رہے۔ 23 مارچ منایا گیا اس بار ہم نے 23 مارچ جو ہے وہ 25 مارچ کو منایا ہے، کیونکہ جی بارش ہو رہی تھی بقول ہماری گورنمنٹ کے کہ بارش میں تو ہمارے فوجی جو ہیں وہ پریڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کہ 23 مارچ کو تھی، وہ ان کے حساب سے 23 مارچ نہیں 25 مارچ کو پیش کی گئی تھی۔ مطلب اگر آپ نے کوئی کام آپ نے اپنے ٹائم سے نہیں کرنا تو آپ نے پوری کی پوری ہسٹری کو ہی الٹ پلٹ کر دینا ہے۔ یہ رواج پاکستان میں ہمیشہ سے ہے، اور شاید یہی چیز لے کر ہم نے بتایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ 71 میں اور جو بنگلہ دیش بنا اس کی ہسٹری بھی ہمیں کس طرح سے غلط پڑھائی گئی، غلط بتائی گئی، اور ابھی تک ہم اس میں اپنی کسی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں۔ جس طرح کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی چل رہی ہے تو اس کے بعد تو ریزگنیشن بنتا ہے، لیکن یہ کہ اب نہ پہلے کسی گورنمنٹ میں کسی نے ریزائن کیا، ہمیشہ سے عدالتوں نے ہی نکالا ہے، اور یہی کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کرونا ہونے کے بعد تقریباً 40 بلین روپیز کے جو ٹیکے ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں وہ عوام کو لگا دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی ایک بار پھر زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر چیز جو آپ لینے جائیں، جو آپ نے لاسٹ ویک لیا تھا اس سے کہیں زیادہ پیسوں کی آپ کو ملے گی، اور اس کے بعد آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی ہم نے آئی ایم ایف کو دے دیا ہے۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسٹیٹ بینک کو بغیر ہماری گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے لوگوں کی انوالومنٹ کے بغیر، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ڈائریکٹ وہ اسٹیٹ بینک کو آرڈر کر سکتا ہے آئی ایم ایف کہ جی اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ ٹیکس لگانے ہیں، اب یہ چیز مہنگی کرنی ہے، اس چیز کو یہ کرنا ہے۔ تو خان صاحب نے جہاں بہت سارے عظیم کام کیے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک کام یہ بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے پورا کا پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کر آئی ایم ایف کو دے دیا۔ اس سے پہلے تو ہمارے جو انڈین پینلسٹ تھے وہ پہلے یہی ہمیں بتاتے رہتے تھے کہ جی وہ F9 پارک دے دیا ہے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ دے دی ہے، کبھی کہتے تھے کراچی کا ایئرپورٹ دے دیا ہے، کبھی کہتے تھے اسلام آباد کا ایئرپورٹ دے دیا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ اب خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف کو دے دیا ہے۔ اور اس طرح سے یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو آہستہ سے کر کے، لیکن یہ کیا آہستہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ صرف 2.5-3 سال ہوئے خان صاحب کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے، اور انہوں نے پورے کے پوری جیسے کہتے ہیں نا واٹ لگا کے رکھ دی ہے سب لوگوں کی۔ اس کے ساتھ جی یو ایس پریزیڈنٹ نے جو ہے انوائرمنٹل سمٹ جو کی ہے اس میں انہوں نے تقریباً
40 के करीब कंट्रीज को बुलाया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। मोदी जी को भी कहा गया है, हसीना वाजिद को भी बुलाया गया है, और लेकिन हमारे खान साहब को नहीं बुलाया। खान साहब को क्यों नहीं बुलाया जी आपने? ये बड़ी गलत बात है। खान साहब ने इतने सारे बिलियन ट्रीज, सुनामी लेकर आए थे खान साहब, और अगर किसी को वो बहुत सारे ट्रीज देखने हैं तो वो उसके लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रीज आपको इंटरनेट पे ही मिलेंगे, कहीं ग्राउंड पे आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे ट्री जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो इंटरनेट पे लगाए थे, और उनके यूथियाज जो हैं वो अभी आएंगे और फिर कक्कड़ पकड़ 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 बोलना शुरू कर देंगे मेरे बारे में। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, आपने घबराना नहीं है खान साहब। अब आप क्या किएगा, जब आप मुर्गियों का और कट्टों का और दूसरे जानवरों की आपने जो आते ही बिजनेसेस बताने शुरू किए थे अपनी गवर्नमेंट के, वो उस सब को लेकर जब आप कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हैवानी कॉन्फ्रेंस कहलाती है, तो यानी एनिमल कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, तो उसमें आप ये जो बाइडेन को ना बुलाइएगा, यूएस प्रेसिडेंट को। ऐसी फजूल सा पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको तो देखकर ना सीढ़ियां चढ़नी भी नहीं आती, ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम प्लेन चढ़ा है। हालांकि अपने अपने खुद के इनके प्लेन, ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमारी तरह कोई किराया नहीं भरा है या हमारी तरह से लीज पे ले लिए और फिर पैसे नहीं दिए, जैसे मलेशिया वालों ने नहीं रखा था। तो इस तरह का भी कोई सीन नहीं है इनके साथ। अमेरिका ने तो सारे प्लेन्स के अपने पेमेंट की भी है। फिर भी देखें, इनका जो प्रेसिडेंट है वो कितना गिरता पड़ता ऊपर तक पहुंचा था, उससे तो वो सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी जा रही थी प्लेन की। तो अजीब, पता नहीं कहाँ से ये इस तरह का मरियल टट्टू टाइप का जो है वो प्रेसिडेंट लेकर आ गए। लेकिन खैर, हमें उससे क्या, दफा करो, हमें क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है, अब आप देखिएगा जो यूथियस है ना, यूथियस आपको मालूम है जो पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं, पीटीआई के मेंबर्स होते हैं, जो पीटीआई को बहुत पसंद करते हैं, उसकी पार्टी को वोट देते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, ट्विटर पे आके जगड़ बगड़ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उन लोगों को जो कि मेरे जैसे सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं। तो अब वो गूगल, मैंने सुना गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं गूगल पे ढूंढ ढूंढ के, वो ये भी देख रहे हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो स्टेट बैंक है वो आईएमएफ को दे दिए हैं, ताकि वो ये बता सकें कि जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा तो सभी लोग करते हैं, तो हमने भी अगर स्टेट बैंक दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और साथ साथ अभी यूथियास जो है वो ये कहना भी शुरू कर देंगे कि जी वो यूएस प्रेसिडेंट ने इमरान खान साहब को इसलिए नहीं बुलाया अपनी जो वो एनवायरमेंटल समिट कर रहे हैं क्योंकि खान साहब को कोरोना है। खान साहब को कोरोना है, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं इनके यूथियास कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वीडियो लिंक के जरिए होनी थी, इसके लिए किसी को फिजिकली कहीं नहीं जाना था। लेकिन खैर, क्या कहा जा सकता है। लेकिन खैर, हम बात करते हैं चाइना की। आप लोग जानते हैं चाइना तो हमारा जिगर है, जिगर। तो चाइना ने ना क्या किया कि वो उसने जी अपने, मैंने सुना है कि वो हमें जो $4 बिलियन दिए थे ना, उसने वो एक हमने लेकर उसके मुंह पे मारे थे सऊदी अरब के। फिर हमने उससे लेके, वो आपको पता है ना, वो यूएई वाले मांग रहे थे तो उनके मुंह पे भी खींच के मारे थे। तो उसने, मुझे लगता है वो वापस मांग लिए हैं शायद। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान की बड़ी तारीफें की कि जी ईरान तो बहुत अच्छा है, ईरान ऐसा नहीं है जो एक ही कॉल के ऊपर जो है वो यू टर्न मार ले या अपनी अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बात से, क्योंकि हमें जो है ना, वो हमारे जो खान साहब हैं, मतलब ये हैंडसम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें इनके ऊपर इतना भरोसा है कि हम जल्दी, आप देखिएगा कि पैसे कहीं ना कहीं से मांग तांग कर कुछ भी कर कर इमरान खान साहब ले आएंगे, और उसके बाद वो पैसे लेके और वो मुंह पे मारेंगे किसके? चाइना के। हम चाइना के मुंह पे वो पैसे वापस मारेंगे और कहेंगे रखो अपने पैसे अपने पास, हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमें हमारे इमरान खान साहब के मांगने तांगने वाले टैलेंट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, और हमें लगता है कि हम इस प्रॉब्लम में से जल्दी ही निकल आएंगे। वैसे तो खैर वो जो समिट हो रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसमें खान साहब वैसे भी जा सकते थे, खुद से भी जा सकते थे, खुद भी ज्वाइन कर सकते थे। जैसे आप नहीं देखते, वो हर वक्त मोदी जी के लिए कहते रहते हैं लोग कि जी वो मोदी जी जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड डॉटर की शादी में बगैर इन्विटेशन के आ गए थे। तो क्या हो गया भाई, ऐसी ऐसी देसी हरकतें जो मोदी जी करते हैं वो तो कोई भी करता है। मुझे तो खुद को बहुत शौक है कि मैं शादियों में जो है वो खाना खाने के लिए पहुंच जाऊं फ्री में, और वो भी मतलब चाहे किसी ने बुलाया हो ना बुलाया हो, लड़की वाले पूछे तो कहे लड़के वालों की तरफ से आई हूँ, लड़के वाले पूछेंगे तो बोलूंगी लड़की वालों की तरफ से आई हूँ। तो इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं जी। तो मोदी जी ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो ये है जो खान साहब करते हैं कि देखें किस तरह से चाइना ने पहले कहा हम सीपैक बना रहे हो, फिर पता नहीं सीपैक का क्या पैक कर दिया, और उसके बाद खुद जाके और जी शुरू हो गए वहां पर ईरान के साथ। और हमारे ये जो आपको मैं दिखाऊं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ,
पर्दा जो उठ गया, तो आगे क्या था गाना मुझे याद नहीं आ रहा कि आगे इन्होंने क्या बोला था। हाँ, ये है जी, आसिम सलीम बाजवा साहब पर्दे में छुप के देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सी पैक के बंद हो जाने से इनकी सैलरी भी बंद हो गई है, जो कि 48 लाख के करीब ये पर मंथ ले रहे थे, और अब इनकी सर्विसेज जो है वो नहीं ली जा रही हैं। अब बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। तो अगर किसी को कुछ हमदर्दी हो इनसे, तो प्लीज इनको कोई जॉब दे दें, ताकि बेचारे बहुत गरीब है, इतने गरीब है, इतने गरीब है, यकीन करें मेरी तो आंखों से ना इनका सोच के आंसू निकल आते हैं। मैं क्या बताऊं, बेचारे की सिर्फ कुछ थोड़ी सी 100-150 के करीब बेचारे की पिज्जा की फ्रेंचाइज है, वहां जा जाकर ये पेल पेल के पिज्जा बनाता रहता है बेचारा। अब ये देखे ना कितना बड़ा जुल्म है कि ये सी पैक बंद कर दिया है इन चाइना वालों को, तो बस अल्लाह ही समझेगा। इतने ये ऐसे निकले हैं ना कि बस इन्होंने तो, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी जूते चाटने में, हम तो इनके इतने जूते चाटे हम क्या बताएं। लेकिन इन्होंने फिर भी हमें इस तरह से, एक तो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, ये कोई तरीका है, और ऊपर से कह रहे हैं कि जी वो सी पैक पे भी नहीं काम हो रहा। अजीब तरीका इन्होंने कर दिया। अब हम करेंगे क्या? अब तो बाजवा साहब ने जो है ना, तकरीबन हर चीज बाजवा साहब और इमरान खान साहब ने हर चीज उठा के गिरवी रख दी है। मुझे लगता है कहीं एटम बम को भी ना रख दें। अगर एटम बम और न्यूक्लियर एसिड्स को भी इन्होंने गिरवी रख दिया, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि हमने तो अभी गजवा हिंद भी लड़नी है, हमने तो अभी दिल्ली पे झंडा भी लगाना है, और वो मोदी जी अपने आप को समझते हैं कि हम उनकी गवर्नमेंट को तो ऐसे 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 करके उड़ा देंगे। तो लेकिन और कश्मीर भी लेना है हमने ना, वो तो हमारा हक है भैया, वो तो हमने लेना ही है ना। तो वो इसी तरीके से आएगा कि गजवा हिंद होगी। लेकिन अगर बाजवा साहब जो है उन्होंने ये न्यूक्लियर एसिड्स भी जाके गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक और रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग और F9 पार्क और बाकी जगह की तरह, तो फिर ये यूथियास जो है, इनकी जो टीम यूथियों की बैठी हुई है, ये करेगी क्या? ये किस तरह से फिर जाके गजवा हिंद लड़ेंगे और क्या करेंगे? लेकिन चाइना को वैसे कुछ भी कहना चाहिए था। चाइना को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये एक फोन कॉल के ऊपर ढेर हो जाते हैं। मतलब ये कोई लैंग्वेज है मतलब बात करने की? एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाहती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लॉयर, एक सेकंड, इसके अंदर लिखा हुआ है लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, और नीचे लिखा है कि जी किसी गधे पर इतना वजन लादना जो गधे की तकलीफ दे हो, जो गधे के लिए तकलीफ दे हो, उसकी सजा है 50 रुपए जुर्माना और 1 साल की कैद भी हो सकती है। यानी कि अगर आप किसी गधे के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल देंगे जो उस गधे के लिए उठाना के लिए प्रॉब्लम होगा, उसकी ताकत से ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर 50 रुपए जुर्माना, फाइन, और इसके अलावा 1 साल की कैद भी हो सकती है। इसका मतलब है बाजवा साहब ने जिस गधे के ऊपर सारा वजन डाला हुआ है, तो मुझे लगता है बाजवा साहब के ऊपर 50 रुपए का फाइन लगने वाला है। चाहे 1 साल की कैद हो या ना हो, 50 रुपए का फाइन तो बाजवा साहब पे पक्का बनता है। अब ये बात मैंने क्या कही, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ यूथियों की ही समझ में आएगी। इसलिए आप लोग अपने दिमागों पे बोझ ना डालें और आगे देखें कि होता क्या है। लेकिन एक चीज और है कि कोरोना यहाँ पे बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और पाकिस्तान में हो सकता है कोई छोटा मोटा लॉकडाउन पे भी हम चले जाएं। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव रखती हूँ। जी मुझे छोड़े, मेरा तो पता नहीं कि मैं 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव रखती हूँ या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी ऐसी है जो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बिलीव रखती है, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए मैं देखती हूँ कि हम पकड़ पकड़ के जितने हिंदू हैं उनको मुसलमान बना रहे हैं, लेकिन वो भी लड़कियों को, पता नहीं लड़कों को मुसलमान क्यों नहीं बनाते। ये सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मुसलमान बनाते हैं? ये चीज भी सोचने वाली है और समझने वाली है। अगर किसी की समझ में आ जाए तो मुझे भी बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आजकल लोग आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क पहने, और आजकल क्योंकि कोरोना हर जगह ही ज्यादा फैल रहा है, और अब तो देखे ना, इमरान खान साहब जो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, सॉरी 1 मिनट गलत हो गया, इमरान खान साहब जो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी से निकल कर आए हैं, कोरोना से, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो इसको बता रहे हैं कि जी ये 3rd वेव है और ये लंदन से आई है। मतलब ये जो 4-5 दिन इमरान खान साहब घर में अकेले रहे, तो उन्होंने सारी चीजें पता कर ली कि किधर से आई है, कहाँ से आई है, 3rd वेव है कि 4th वेव है कि 2nd वेव है। तो इस तरह से उस बीमारी में से निकल आए हैं, और सुना है कि कुछ दिनों में दोबारा ऑफिस भी जाने लगेंगे। तो आप लोग लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा
اور ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا کہ آپ کون سے گیسٹ کو ہمارے شوز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کون سے ٹاپکس. تھینک یو سو مچ.